میری بھی آنکھیں ہوتی اور جس طرح لوگ مدینہ دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، میں بھی مدینہ دیکھوں اور ان کا روضہ دیکھوں، وہاں پر جاؤں اور بہت سی دعائیں کروں. لیکن بعض اوقات خوش ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے محبوب کی نعت پڑھوں. میں نے بڑی یہ خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ دوسروں کی گئی باتوں سے خوشی یا غم محسوس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے دل کا اسٹیئرنگ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا. سو اپنے دل کا اسٹیئرنگ اپنے پاس رکھیے، اپنے قابو میں رکھے تاکہ آپ خود ہی خوشی محسوس کریں. لجپال نبی سونا لگیاں نبھاوے گا، تکے کھان والیاں نو گل نال لاوے گا. لجپال نبی سونا لگیاں نبھاوے گا، تکے کھان والیاں نو گل نال لاوے گا. ونڈدا یتیماں نو پیار سونا آ گیا، سارے رسولاں دا سنگار سونا آ گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 94 نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین، میں سیالکوٹ میں ایک ایسی نعت خان کے گھر پہ موجود ہوں جو بینائی سے تو محروم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مزید صلاحیتوں سے نوازا ہے. پی ٹی وی سمیت کئی بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر وہ اپنی آواز کا جادو جگا چکی ہیں، اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں. جب وہ نعت پڑھتی ہیں، جب وہ بولتی ہیں تو قلب و روح کو چھو جاتی ہے آواز ان کی. میرے ساتھ موجود ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی معروف نعت خواں لاریب افضل. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے یہ ٹریننگ کہاں سے لی، نعت خوانی کی طرف کب کیسے آئیں، یہ ساری گفتگو ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. تو یہ آپ نے ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کی مبارکباد کا اور آپ کا، اور الحمدللہ سے میں سرکار کی ثنا کر رہی ہوں اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. تو میں خود بڑی بعض اوقات خوش ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے محبوب کی نعت پڑھوں. تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے، اور اس چیز کی جو ٹریننگ ہے میں پہلے بھی کافی ساری جگہوں پر بتا چکی ہوں، اور اس میں بالکل سچ ہے کہ میرے بابا جان جن کو لوگ افضل راہی کے نام سے جانتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے کافی سارے والیومز بھی ریلیز ہو چکے. تو ویسے تو یہ ہے کہ مجھے وراثت میں تھا، لیکن بابا جان کا کوئی اٹینشن ہوتا ہے نا کہ بندے کی وش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ایسے کرے، لیکن تقریباً پچھلے 1 سال سے بابا جان کی اٹینشن میرے لیے بڑھنے لگی، اور الحمدللہ بابا جان کی وجہ سے آج میں اس فیلڈ میں ہوں، اور بابا جان کی محنتوں کاوشوں کی وجہ سے، میری فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں الحمدللہ یہاں پر موجود ہوں. بے شک. تو آپ کب سے نعت شریف کی طرف آپ اس طرف رجحان ہے؟ نعت شریف کی طرف میرا جب میں بالکل چھوٹی سی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ میری ماما جان بتاتی ہیں کہ بالکل چھوٹی تھی اور بڑے صاف لفظوں میں آپ نے بات کی، آقا کا بول بندے آقا کا بول. تو میری بڑی سسٹر نے مجھے اٹھایا تھا، تو اس نے ماما کو بتایا کہ ماما اس نے بات کی. دوبارہ میں نے پھر سے وہی بات کی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے شروع سے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ نعت ہے کیا. نعت حضور کے خصائل اور ان کے خصائص کو کہا جاتا ہے، حضور کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے. پھر پتہ چلا اور مائنڈ اور بھی زیادہ اس طرف جانے لگا، اور آج الحمدللہ میں نعت پڑھ رہی ہوں. ماشاءاللہ آپ کے الفاظ سے لگتا ہے
पढ़ी लिखी भी हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, हर तरह की तालीम घर में हासिल करती हूँ। और सिर्फ़ मैं अपने घर से हासिल ही नहीं करती, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि किताबें ही इंसान की रहनुमाई कर सकती हैं, बल्कि इंसानी रवैये, इंसानी लहजों से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बेशक ऐसा ही है। जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो आप किसको सुनती हैं? आपका फेवरेट नात खान कौन है? किसको देख के आप इंस्पायर होती हैं? मेरे टीचर, मेरे उस्ताद, मेरे बाबा जान, सबसे ज़्यादा उन्हें ही सुनती हूँ। और भी जो मुझे अच्छे लग जाएं उनको सुनती हूँ, ज़रूर सुनती हूँ। किस लेकिन नात खान को ज़्यादा सुनती हैं, फीमेल या मेल, कोई भी? किसी को भी सुन लेती हूँ। अहमद अली हाकिम साहब को सुनती हूँ। ज़्यादा उनको सुनते हैं? हाँ जी, उनको सुनती हूँ ज़्यादा। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, कभी ये सवाल तो ज़ाहिर है तकलीफ़ दे है, किसी से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कभी इस महरूमी पे आपको अफसोस, दुख होता है कि मुझे बनाइए? महरूमी आखिर महरूमी होती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उस महरूमी को महरूमी बनाकर चलें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी है ना ये। सो लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ अल्लाह का दिया हुआ बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। और दुनिया वाले तो हैं ही ऐसे कि मतलब एक दूसरे को हर्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं सम टाइम इंसान की ज़िंदगी में कि ऐसा हो गया वैसा। लेकिन मैं कहती हूँ कि लोगों के सामने ऐसा बनो कि जिनके लिए आज आप एक मजाक हो, कल उनके लिए एक मिसाल बन जाओ। ये चाहती हूँ मैं। क्या मोटिवेशन है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो कभी मच। किसी ने ट्रोलिंग की है, ताना दिया है इस चीज़ का आपको? कभी तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो? सम टाइम हो जाती है तकलीफ़, और कुछ रिलेटिव्स कभी दिल दुखा देते हैं, मतलब होता है ना, तो कुछ अपने ही दिल दुखा देते हैं। कहते हैं कि अपने तो अपनों को बातों से मार देते हैं साहिब, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो मतलब ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन अब मैंने उनकी बातों को अपने दिल पर लेना छोड़ दिया है। क्यों? इसकी वजह ये कि मैंने बड़ी एक खूबसूरत बात है कि अगर आप दूसरों की गई बातों से खुशी या गम महसूस करते हैं, तो आपने अपने दिल का स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। सो अपने दिल का स्टीयरिंग अपने पास रखिए, अपने काबू में रखिए, ताकि आप खुद ही खुशी महसूस करें और खुद ही किसी की वजह से आप गम महसूस ना करें, क्योंकि फिर तो आपने अपनी ज़िंदगी लोगों पर डिपेंड कर दी। सो अपनी ज़िंदगी का अपने दिल का स्टीयरिंग हमेशा अपने पास रखिए और खुश रहना सीखें और खुशियाँ बांटना सीखें। ये चाहती हूँ मैं। क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने। क्या अगर हम दूसरों को सोचते रहे तो ये हमने स्टीयरिंग किसी और के हाथ में पकड़ा दिया। क्या अच्छा, आप ये बताएं कि कभी ख्वाहिश हुई है किसी चीज़ को देखने की कि काश मेरी आंखें होती तो मैं इसको देखती या ये चीज़ देखती? कभी ये ख्वाहिश दिल में? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि मैं नात पढ़ती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस नात को समझा कि सब क्या है, और फिर वो हुजूर की नातें सुनी, पढ़ी, और सम टाइम दिल में आता है कि मेरी भी आंखें होती, और जिस तरह लोग मदीना देखने की आरज़ू करते हैं, मैं भी मदीना देखूं और उनका रोज़ा देखूं, वहाँ पर जाऊं और बहुत सी दुआएं करूं, लेकिन उस जगह को देखूं, गुंबद खजरा देखूं, जो मैं उनकी नातों को पढ़कर, उनके लफ्ज़ों को अदा करके महसूस करती हूँ, वो मैं देख कर महसूस करूँ। कभी कभी ये आता है माँ बाप को देखूँ, फैमिली मेम्बर्स को देखूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ इसमें अल्लाह ताला की शायद कुछ बेहतरी है कि अगर मैं देखती तो शायद कुछ गलत देख लेती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी अपने हाल पर खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने फैमिली मेम्बर्स का जहन में खाका बनाया होगा, कौन किस तरह से है? मोस्टली पैरों की आहट से भी सम टाइम पहचान लेती हूँ, और सिस्टर ब्रदर्स के साथ सम टाइम जब थोड़ी सी मतलब छेड़छाड़ हो जाए तो उनके पीछे पड़ जाती हूँ और अंदाजे से उनको ढूंढ भी लेती हूँ, यानी कि आहट सुनती हूँ और उनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और उनकी यानी कि ढूंढने की जब कोशिश करती हूँ फिर मोस्टली ऐसा होता है कि मैं उनको ढूंढ भी लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह से सबकी पहचान है, और सबकी आवाज़ों से मैं बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ, और ऐसे हाथ मेरा टच करें, मुझे पकड़े तो मैं मोस्टली पहचान लेती हूँ कि ये मेरे फ़लाँ फैमिली मेम्बर का हाथ है, ये मेरी मम्मा है, बाबा है, सिस्टर है, ब्रो है, कोई भी है, पहचान लेती हूँ। किन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप नात खानी कर चुकी हैं, कुछ बताएंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह PTV इस्लामाबाद पर मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान और अनगिनत चैनल जिनका मैं नाम नहीं बता सकती, बहुत सारे चैनल्स पर अब तक मैंने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ और हुजूर की नात के साथ रोशन करूँ। जी, क्या आगे बनने का आपका क्या प्लान है, क्या ख्वाहिश है आपकी? क्या बनने की ख्वाहिश है? मैं कहती हूँ नात खान तो बनूंगी, यही चाहती हूँ कि जो सबकी बिगड़ियाँ बनाते हैं वो मुझे भी कुछ बना दे। जो वो बनाएंगे वो बनना मुझे मंजूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने आज बनाया है वो अच्छा बनाया, तो और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छा सोचती हूँ, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो आपकी फेवरेट नात कौन सी है?
मेरी फेवरेट नात वैसे तो नातें सब जी जी बिल्कुल सब प्यारी होती हैं, बेशक। तो सारी मेरी फेवरेट हैं। और मोस्ट फेवरेट आप चलिए चलिए मोस्ट फेवरेट वो आपको सुना देती हूँ। जी जी सुनाइए। सारियां रसूलां दा सिंगार सोना गया, सारियां रसूलां दा सिंगार सोना गया, बन के ज़माने दी बहार सोना गया, सारियां रसूलां दा सिंगार सोना गया। लजपाल नबी सोना लगियां निभावेगा, धक्के खाण वालियां नूं गल नाल लावेगा, लजपाल नबी सोना लगियां निभावेगा, धक्के खाण वालियां नूं गल नाल लावेगा, वंडदा यतीमां नूं प्यार सोना गया, सारियां रसूलां दा सिंगार सोना गया, सारियां रसूलां दा सिंगार सोना गया। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बयान। जी नाज़रीन, जिस तरह से मैं अपने जज्बात अपने अल्फाज में नहीं बता सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी रूहानी शख्सियत के पास बैठा हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया जिस बात ने, वो ये बात थी कि हम आँखों वाले जो हैं, हमारे हाथ पाँव सारे अज़ा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़ुबान पे, हमारे चेहरों पर बेशुमार हमारी शिकायत होती हैं। हमें ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, हमारे हालात ऐसे हैं, हमें हालात ने ऐसा कर दिया। लेकिन इनके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान है, इनके चेहरे के ऊपर एक सुकून है, मुस्कुराहट है। अल्लाह ताला ने इतना सबसे बड़ी जो मैं नेमत समझता हूँ वो है दिल का सुकून, जो अल्लाह ताला ने इनको अता किया है। वो अपने बाबा से इंस्पायर है, उनको देखते हुए उन्होंने नातें पढ़ना शुरू की। जिसको अल्लाह ताला ने सुकून अता कर दिया, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ अता कर दिया। तो आप इनकी नात के बारे में इनके जज्बात क्या रखते हैं? अपने जज्बात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।